المناک حادثات قیمتی جانیں لے گئے۔ دیربالا میں گاڑی کھائی میں گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق۔ سندھ کے شہر میں حادثہ 2 جانیں لے گیا۔ ٹھری میربا میں 4 طلبہ زخمی ہو گئے۔ رشتوں کا تقدس پامال ہو گیا۔ بورے والا میں معمولی گھریلو جھگڑے پر ناحلف بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ ملزم کی تلاش جاری۔ شکارپور میں فائرنگ، 2 افراد قتل۔ سندھ کے شہر میں بیوی کے ہاتھوں شوہر قتل۔ ڈی آئی خان کی تحصیل کلاچی میں قانون کے محافظ پر حملہ، ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید۔ سرچ آپریشن شروع۔ پولیس لائن ڈیرہ میں شہید کی نماز جنازہ ادا۔ بگڑے رئیس زادوں کے خطرناک شوق۔ شیخو پورہ میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، 2 افراد گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ ملزمان گرفتار۔ سیبی میں ہوائی فائرنگ سے ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ دائرہ دین پناہ میں محنت کش کو بااثر شخص کے پالتو کتے نے کاٹ لیا۔ مزدور شدید زخمی۔ اسپتال میں ویکسین میسر نہ ہونے پر مشکلات کا سامنا۔ رنالہ خورد میں بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش، شور مچانے پر شہری پہنچ گئے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج، مزید کارروائی جاری۔ سندھ کے شہر نارا میں جنگلات میں آتش زدگی، نایاب پرندے اور جانور جل کر ہلاک۔ آگ نے گندم کی فصل کو بھی جلا ڈالا۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آگ کے تحت آگ پر قابو پایا۔ مہنگائی کا جن بے قابو، ماہ رمضان کے قریب آتے ہی اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال، دکاندار منمانے ریٹ وصول کرنے لگے۔ محکمہ سوئی گیس کی مہربانیاں، گرمیوں میں بھی شہریوں کو گیس کی بندش کا سامنا۔ کروڑ پکا میں بحران بدستور جاری، شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ احتجاج سڑکوں پر نکل آئے۔ سندھ میں پانی کا بحران سنگین ہو گیا۔ سہون شریف میں پینے کا صاف پانی نایاب، شہری مضر صحت پانی پینے پر مجبور۔ بدین میں پانی کی قلت کی وجہ سے شہری دہی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ سہون شریف میں گیسٹرو کی وبا شدت اختیار کر گئی۔ ایک دن میں 100 سے زائد بچے اسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں گندا پانی پینے سے وبا پھیل رہی ہے۔ کورونا کے وار ختم ہونے کے قریب 24 گھنٹوں کے دوران ایک شہری کی موت ہوئی ہے، جبکہ 186 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.66% رہی۔ تیمر گرہ میں جماعت اسلامی کا جلسہ، مرکزی امیر سراج الحق اور سینیٹر مشتاق احمد خان کو جلسہ منعقد کرانے پر نوٹس۔ الیکشن کمیشن نے 29 مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ اور موسم بہار کی آمد، کوہ سفید کے دامن میں خوبصورت ثقافتی تقریب سج گئی۔ بچوں کے ثقافتی شو، علاقائی رقص، شاعری اور ساز نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔
अस्सलामु अलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ गजल अशरफ अमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है ए अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अतहार अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे मुल्क की परेशानियाँ दूर फरमा और वतन के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमा। आमीन सुम आमीन। दायरा दीन पनाह में मजदूरी पर जाने वाले मजदूर को बासर शख्स के पालतू कुत्ते ने काटकर शदीद जख्मी कर दिया। दायरा दीन पनाह के नवाही इलाका खैदर गाजी में मजदूरी पर जाने वाले मेहनत कश को बाअसर शख्स के पालतू कुत्ते ने काट लिया। मजदूर शदीद जख्मी हो गया। मुतासरा शख्स की हालत गैर होने पर RHC अस्पताल दायरा दीन पनाह मुंतकिल कर दिया गया। बाअसर शख्स को खौफनाक कुत्ता और इससे कबल भी बच्चों को नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई अमल में न आई। उधर अस्पताल में वैक्सीन तक मौजूद नहीं है। आरेवाला में पानी का बहरान संगीन हो गया। शहरी पानी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर अहमद खरल। तहसील आरेवाला में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने पिछले कई अरसे से आवाम को पानी से महरूम कर दिया। पूरी तहसील में लगे ट्यूबवेल जो कि पिछले कई अरसे से खराब पड़े हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। मकामी इदारे भी खामोश हैं। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पानी बिल्कुल नहायत ही निकासी गंदा आ रहा पानी। फिल्ट्रेशन प्लांट भी साफ नहीं पानी दे रहे, लिहाजा इत्थों दे बारे च कोई सोचो। जो पानी गलती से मुहैया किया जा रहा है वो इंतहाई गंदा, बदबूदार और जरासीम से भरा हुआ है, जिससे लोग हेपेटाइटिस के साथ साथ कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अवाम का मजीद कहना है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट दिए जाएं क्योंकि सप्लाई का पानी बिल्कुल ठीक नहीं है। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV, आरिफवाल। सहवन में गैस्ट्रो की वबा शिद्दत अख्तियार कर गई। सहवन में गैस्ट्रो की वबा ने पंजे गाड़ लिए। 100 से ज्यादा बच्चे मूसी मर्ज का शिकार हो गए। शहर में वाटर सप्लाई का गंदा पानी बीमारियां फैलने लगा। गैस्ट्रो की बीमारी में इजाफे के बाद सहवन अस्पताल मरीजों से भर गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बदीन में पानी का बहरान संगीन हो गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की किल्लत की वजह से शहरी और दही जिंदगी मफलूज होकर रह गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अहमद। पानी से खाली ये नहरें हैं बदीन की, जिन्हें गुज़श्ता 2 माह से महकमा इरीगेशन की जानिब से पानी फराम नहीं किया गया। पानी की अदम फरामी के सबब ज़िला बदीन की नहरों में धूल उठती दिखाई देती है। बदतरीन किल्लत आब के सबब शहरी दिन भर पानी के उसूल के लिए सरगर्दा दिखाई देते हैं। किल्लत आब बहरानी शिकल इख्तियार करने की वजह से अवाम शदीद परेशान है। अवाम का कहना है, लेकिन ज़िले बदीन की तो बिल्कुल पानी की सूरत हाल बहुत ख़राब की हुई है। फिर पता नहीं कोई सियासी मसले हैं या कोई वजह है। जो हमारे पास फसलें तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास पीने के पानी के बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रहे हैं। पानी ना होने की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी भी जो नमकीन होता जा रहा है। तो दूसरा ये कि हमारे पास माल मवेशी के लिए पानी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारी आला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि पानी के मसाइल हल किए जाएँ, फिल्फ और बदीन को पानी दिया जाए। ये नहर है हमारी जो इस तरफ 58 चक की तरफ जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल नहीं है। मवेशियों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। जो तालाब निकाले थे वो भी सूख चुके हैं और आबादी हमारी जो है वो पानी जब पीने के लिए नहीं है तो आबादी कहाँ से होगी। बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें पानी दिया जाए घूनी में, ताकि आगे जो रहने वाले हैं बसने वाले उनके लिए आसानियाँ हों और हमारी फसलें जो है वो काश्त की जाएं टाइम पे और हमें उनका प्रॉफिट मिल सके। पानी की किल्लत के मारे अवाम ज़ेरे ज़मीन पानी के असूल के लिए महंगे दामों बोरिंग कराने पर मजबूर है, जबकि शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी फरोख्त करने वालों की भी चांदी हो गई है और पानी माफिया ने अपने दाम भी 200% बढ़ा दिए हैं। बदीन की अवाम का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि सूरत हाल का नोटिस लेते हुए बदीन की अवाम को पानी फराम किया जाए। नासिर अहमद, सच न्यूज़, बदीन। तांदियावाला का तारीखी रेलवे स्टेशन फाल न हो सका, जिसके बाद मुसाफिर सस्ती सफरी सहूलत से महरूम हो गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। हुकूमती दावों के बावजूद भी तांदियावाला का तारीखी रेलवे स्टेशन मंजिला बाग फाल न हो सका। दफ्तर के कमरों, रिकॉर्ड और फर्नीचर महकमा की बेबसी की दास्तां सुनाने लगा। तहसील तांदियावाला के दीगर रेलवे स्टेशन को जहां इलाकाई मकबूलियत हासिल है, तो वहीं तांदियावाला में सबसे मकबूल और करीबी सैकड़ों चुकूक और आबादियों का वाहिद रेलवे स्टेशन मंजिला बाग ही तस्वर किया जाता है। कहा जाता है कि इस स्टेशन का क़याम और अमारत 1913 को अमल में लाया गया, जो वक्त के साथ साथ दीगर रेलवे स्टेशन से मुनफरिद, मुनाफा बख्श,
रेलवे स्टेशन के साथ रौनक के लिहाज से भी दीगर रेलवे स्टेशन को भी पीछे छोड़ दिया। अब तक एक अरसा से मंजिला बाग रेलवे स्टेशन की न सिर्फ रौनकें खत्म होती गईं, बल्कि दफ्तर की तालाबंदी के साथ अमला भी गायब हो गया। मंजिला बाग रेलवे ट्रैक की इमारत बुसीदा होकर ज़मींबोज़, जबकि स्टेशन का रिकॉर्ड भी दीमक के सुपुर्द हो चुका है, जिसपे अहले इलाका के साथ मुख्तलिफ सियासी व समाजी हलकों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। सिटारजा में गंदम की फसल की कटाई शुरू हो गई। सरकारी मराकज़ न खोलने के बायस काश्तकार सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मुतलिब बलोच। सिंध के शहर सिटारजा में भी गंदम के फसल की कटाई शुरू हो गई है। सिंध हुकूमत ने 2200 रुपया फी मन गंदम की कीमत मुकर्रर की, लेकिन ताहाल इंतजामिया के जानिब से सरकारी मराकज़ ना खोलने पर काश्तकार सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। काश्तकारों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदम की कटाई शुरू हो गई है, सरकारी मराकज़ अब तक नहीं खुले हैं, हम सस्ते दामों से गंदम बेच रहे हैं। आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि सरकारी मराकज़ खोले जाएं। काश्तकारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी मराकज़ खोल दिए जाएं ताकि गंदम सरकारी रेट पर फरोख्त कर सकें। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुतलिब बलोच, सच न्यूज़ सिटारजा। मीरपुर मातलो में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। दही इलाकों में गंदम की कटाई रवायती अंदाज में हाथों से की जाती है। रिपोर्ट करेंगे अली वसीर। सिंध के बिस्तर शहरों की तरह मीरपुर माथेलो में भी गंदम की नई फसल पककर तैयार हो चुकी है। गंदम की कटाई का अमल भी तेजी से शुरू हो गया है। गंदम की फसल की कहीं रेपर के जरिए तो कहीं रवायती अंदाज हाथों के साथ किया जाता है, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की सरकारी खरीदारी मरकज नहीं खोले जा सके हैं, जिसके बायस काश्तकार सस्ते दामों पर गंदम व्यापारियों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। DAP 10,000 रुपये बोरी चल रही थी, खाद 2500 रुपये बोरी चल रही है। अभी फुट भी बंद पड़े हैं और डीजल भी महंगा है। 10,000 हमारे को DAP की बोरी मिली है और 3,000 यूरिया की बोरी मिली है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फूड सेंटर जल्द से जल्द खोले जाएं और हुकूमत की जानिब से रेट पर भी कंट्रोल करवाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, मीरपुर माथेलो। टंडोवाला यार के तलबा सरकारी फॉर्म की फीसों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। तलबा ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन। तालीमी बोर्ड की जानिब से मार्कशीट और सर्टिफिकेट की फीस मुकर्रर करने के खिलाफ तलबा और असातिज़ा ने गवर्नमेंट प्रोनेशनलाइज्ड हाई स्कूल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा ने सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर तलबा का कहना था कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी की जानिब से सरकारी फार्म की मद में 2,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। हुकूमत सिंध फ्री तालीम की बात करती है, फिर ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? बोर्ड कोरोना की वबा की वजह से 2020 में इम्तिहानात नहीं करवा सके, जिसका फंड 2019 में रिलीज हुआ, वो पैसे कहाँ गए? तलबा ने सवाल उठा दिए। गवर्नमेंट ने जो हमारे डॉक्यूमेंट फीस रखी है 1970 रुपये, हम इसको कैसे दे सकते हैं? हम इसको कैसे दे सकते हैं? गरीब के सारे बच्चे हैं, हमारे वालिदैन मजदूरी करते हैं, हमारे वालिदैन मजदूरी करके हमें बहुत मुशक्क़तों से स्कूल भेजते हैं। तलबा ने वज़ीर आला सिंध महकमा तालीम के सेक्रेटरी से मुतालबा किया है कि फिलफोर फीस के अहकामात वापस लेकर फ्री तालीम के असूल को यकीनी बनाए, ताकि तलबा और तालबात बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करके मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज़, टंडोला यार। करोड़ पक्का में गैस का बहरान बदस्तूर जारी है। गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। करोड़ पक्का में गैस की लोड शेडिंग शदीद हो गई। मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगी। घरेलू सारिफीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए, जबकि शहरी महंगे दामों होटलों से खाना मंगवा कर खाने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। सनावा म्यूनिसिपल कमेटी कूड़ा करकट उठाने वाले रिक्शे नाकारा हो गए, जिसकी वजह से शहर भर में कूड़े के ढेर लग गए। कोई पुरसाने हाल नहीं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। तकरीबन 2 साल कबल म्यूनिसिपल कमेटी सिनावा ने शहर भर की सफाई और कूड़ा क्रिकेट उठाने के लिए लाखों रुपए की मालियत से रिक्शे खरीदे गए, लेकिन कुछ अर्सा काम करने के बाद खराब होने की वजह से खड़े खड़े नकारा हो गए हैं, जिसकी वजह से शहर भर में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिससे ताफुन फैल रहा है। शहरियों का कहना है कि कई रोज गुजर जाने के बावजूद अमला गंदगी उठाने नहीं आता। म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली है कि रिक्शे जो खराब हुए हैं, गंद उठाने वाले, अभी तक उन्होंने बनाए नहीं है। 15 दिन हो गए, शहर में गंद भरा पड़ा है, गली मोहल्लों में गंदगी से बुरा हाल है। दूसरी तरफ सेंट्री इंचार्ज का कहना है कि तमाम तर फर्द जिला कौंसिल में शिफ्ट होने की वजह से मिसाइल का शिकार हैं। जब से हमारा निज़ाम चेंज हुआ है, जिला कौंसिल में हम जो है ना मुंतकिल हुए हैं, जब से हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना है।
मकामी ठेकेदार जो है वो काम इसलिए कराने को तैयार नहीं, वो कहते हैं कि जी पता नहीं हमें पेमेंट होगी या नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर भर के कूड़ा करकट उठाने के लिए रिक्शों को प्रॉपर तौर पर मुरम्मत कराकर काम पर लगाया जाए। नीरू हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। महंगाई का जिन बेकाबू, माह रमजान के करीब आते ही अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुपया इजाफा कर दिया गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल न होने की वजह से दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे। मुजफ्फरगढ़ से समीउल्लाह की रिपोर्ट देखते हैं। माह रमजान आने से पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू, अशिया खुर्दनोश और खाने पीने की चीज़ों में होश रुपया इजाफा, दुकानदार शहरियों से मनमाने रेट वसूल करने लगे, जिसकी वजह प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल ना हैं। गरीब मजदूर, ताज़ा दिहाड़ीदार का 2 वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा, गोश्त 400 से लेकर 450 रुपए किलो में फ़रोख्त होने लगा। कुछ शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है और चीनी को देख लें, घी को देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी महंगाई तो कभी भी नहीं हुई जो इस दौर हुकूमत में हुई है। अब माह रमज़ान आ रहा है, उसके सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, माह रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है, उसमें आप देख लेंगे कि कितनी महंगाई होगी। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि मसनूई महंगाई को कंट्रोल किया जाए और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए। हाफिजाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जावार जफर इकबाल। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। बढ़ती महंगाई ने मजदूर तबके की कमर तोड़ कर रख दी। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी, मुर्गी का गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया। घी 450 रुपए, चावल 200 रुपए, चीनी 110 रुपए, आलू 60 रुपए, प्याज 70 रुपए, मुर्गी का गोश्त 420 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। महंगाई की चक्की में पीसी अवाम का कहना है, रमजान उल मुबारक की आमद से पहले ही माफिया जो सरगर्म हो गया है, जिस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुंच गया, जिस वजह से आटा, दालें, सब्जियां वगैरह बहुत महंगी हो चुकी हैं। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हर गरीब आदमी रमज़ान उल मुबारक में रोज़ा रख सके। रोज बरोज की बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी को अंजीरन बना दिया। महंगाई के बहस कारोबार न होने की वजह से दुकानदार भी परेशान हाल में। माह रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। हुकूमत को चाहिए कि वो एशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करके ताकि गरीब आदमी भी माह रमजान अल मुबारक के रोजे रख सके। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। डीआई खान में अफसोसनाक वाकया पेश आया। नामालूम अफराद ने पुलिस एहलकार पर गोलियां चला दी। फायरिंग की जद में आकर पुलिस एहलकार मौके पर शहीद हो गया। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद को उनके आबाई गांव में सुपुर्दे हक किया गया। पुलिस ने चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बूरेवाला में घरेलू झगड़े पर बेटे ने फायरिंग करके बाप को मौत के घाट उतार दिया और मुलजिम मौके से ही फरार हो गया। रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो गया। बूरेवाला के नवाही गांव में मामूली घरेलू झगड़े पर नाहल्फ बेटे ने तैश में आकर अपने बाप पर फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया और खुद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हवाई फायरिंग का खतरनाक रुझान बढ़ने लगा। शेखुपुरा में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबी में फायरिंग से एक बच्चा जख्मी हो गया। खानपुर में डकैती की वारदातों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। खानपुर में डाकू बेलगाम हो गए। 5 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 4 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। दौरान मज़ाहमत डाकुओं ने 2 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। टंडू रहीम खान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से बचने के लिए शहरियों ने सोलर सिस्टम की दुकानों का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे हनीफ। गर्मियों के आगाज के साथ ही सिंध के तहसील जोही के अमीर और गरीब शहरियों ने सोलर पैनल के दुकानों का रुख कर दिया है। एक तरफ गर्दन तोड़ महंगाई तो दूसरी तरफ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली के यूनिट्स की ऊंची कीमतें बढ़ने की वजह से शहरी तंग आकर सोलर पैनल खरीद रहे हैं। गरीब मेहनतकश तबके का कहना है कि सोलर सिस्टम हम गरीबों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। एक ही बार 10 से 15 हजार खर्चा करके सुकून भर की जिंदगी गुजार रहे हैं। सोलर का जो सिस्टम है हम गरीबों के लिए किसी नेमत से कम नहीं।
हम एक ही बार 10-12 हज़ार रुपये खर्च करके एक सोलर और एक पंखा लेते हैं और दिन भर सुकून की नींद सोते हैं। सोलर पैनल फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि सोलर पैनल्स की तेज़ी से फरोख्त होने से गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल सोलर सिस्टम की मंसूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कल गुजरे साल जो प्लेट का रेट था कम से कम मेरे ख्याल में 5 या 5.5 हज़ार रुपये का था, तो गरीब जो बंदा था बिल्कुल आसानी के साथ 10 या 8 हज़ार रुपये अपना काम करके जाता था, जिसमें उसको के तार भी मिल जाती थी केबल और उसके साथ फैन भी मिल जाता था, सोलर भी मिल। इस साल की बात करें तो वो ही प्लेट जो 5 हज़ार 5.5 हज़ार की हम सेल कर रहे थे वो आज हमें 11 साढ़े 11 हज़ार की मिल रही है। ज़रूरत इस बात की है कि सोलर सिस्टम पर इजाफी टैक्स ख़त्म करके गरीब मजदूरों को रिलीफ दिया जाए और सोलर सिस्टम की मंसूआत की कीमतों में कमी करके गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों को रिलीफ फराम किया जाए। कैमरा टीम के साथ हनीफ रोदनानी, सच टीवी न्यूज़, टंडो रहीम खान। कोट अदू में तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। कोट अदू तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा की जानिब से बाउनवान वतन की फ़िक्र का नादा पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मौलाना मलिक शफकत अब्बास ने सच न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि पैगाम पाकिस्तान जो सदर ममलकत की सरपरस्ती में दिया गया कौम को, उसकी तशरीह, तबयीन, तफसीर, ताकि लोगों को आगाही दी जाए कि मकसद क्या है पैगाम पाकिस्तान का, कि जिसके ऊपर 15,000 से ज़्यादा उलमा के दस्तखत हैं। ये लोगों को बताया जाए कि ये जो जितने भी मसलकी और नस्ली और लिसानी इख्तलाफात हैं, इनको ख़त्म करके हकीकी दीन इस्लाम के परचम के नीचे आके वहदत की लड़ी में परोए जाएं और ये सारे इख्तलाफ ख़त्म करके अपने पाक सरज़मीन को बहिश्त आफरीन बनाया जाए। ये कॉन्फ्रेंस का हदफ और मकसद था। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने मुख्तलिफ शहरों से शिरकत की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारा मकसद ये है कि उम्मत के अंदर जो तकसीम है उसको ख़त्म किया जाए और सही इस्लाम पे और तमाम मुसलमानों के जितने भी मकातब फ़िक्र हैं वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्लेटफार्म पे जमा हों और मिल के जद्दोजहद करें। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का मकसद पाक सरज़मीन, पाक नज़रिया, पाक सोच, पाक तहज़ीब, पाक सियासत, पाक तलीमी निज़ाम का नफाज हो। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोट अदू। खैरपुर में क्लर्क एसोसिएशन ने अपने मुतालबात के हक में तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली गोहर। हर इदारे में रेड की हड्डी की हैसियत रखने वाले खुद अपने मसाइल के हल के लिए परेशान है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एजुकेशन की जानिब से खैरपुर के नाज स्कूल में अपने मुतालबात के हसूल के लिए मुल्क भर से आए क्लर्कों ने शिरकत की और उनका कहना था कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाए, नहीं तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इस हवाले से मुकर्रिन का कहना था कि जितने मसाइल हैं क्लर्कों के वो इंशाल्लाह ताला डिपार्टमेंट के और हुकूमत के पास और चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग रख के इंशाल्लाह ताला हल कराएंगे। मुकर्रिन का कहना था कि अफसर क्लर्क के सिवा कुछ नहीं, हमें अफसर की इज्जत करनी चाहिए। जो अफसर क्लर्क इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत करना लाजिम नहीं है। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। लिया की पुलिस लाइन में जर्नल परेड का इनेकाद किया गया। पुलिस एहलकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। पुलिस लाइन लिया में जनरल परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस दस्तों ने मार्च पास का शानदार मुजाहरा करते हुए डीएसपी सर्कल सदर गजनफर अब्बास को सलामी पेश की। डीएसपी ने परेड का मुआयना किया, एहलकारान का टर्नआउट भी चेक किया। बेहतरीन टर्नआउट पर नौजवानों को शाबाश दी। जिले पुलिस, इलेट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकारान ने जनरल परेड में हिस्सा लिया, अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया। फोर्स से खिताब करते हुए डीएसपी का कहना था, पुलिस अफसरान फील्ड में अपना टर्नआउट बेहतर रखें और डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। एमटी ब्रांच में पुलिस गाड़ियों को इंस्पेक्शन की गई। मैं साल के विजिट के दौरान खाने का मेयार भी चेक किया गया। कैमरामैन लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़। टंडो जाम में बच्चियों को हरासा करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने भरपूर शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं जुनैद अली भट्टी। सिंध के मजलूम अवाम को हकूक के लिए जर्नलिस्ट, राइटर, सिविल सोसाइटी फॉर टर्थ जस्टिस एंड पेश की जानिब से हैदराबाद में कत्ल होने वाली एनी बलोच के कत्ल पर और सिंध के बच्चों को तालीमी इदारों में हिरासा किया जाने पर एहतजाजी रैली टंडो जाम टाउन हॉल से टंडो जाम प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में एनी बलोच के वालदा डॉक्टर परवीन रिंद और दीगर वुरसान
ने शिरकत की। रैली की क़यादत JWC के मरकजी सदर जुल्फकार खासकली, नियाज विगो और दीगर ने की। और खिताब करते हुए JWC के रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के शऊर को अब बुलंद करना होगा, सिंध में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और मुख्तलिफ शहरों में कामयाब एहतजाज मुजाहरे हुए हैं। नवाबशाह में होने वाले एहतजाज का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। रैली से खिताब करते हुए परवीन रिंद का कहना था कि 1 माह से ज़्यादा हो गया है, हम अदालतों में चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मामले का नोटिस ले और इंसाफ फराहम करे। रैली के दौरान हैदराबाद में कत्ल होने वाली एनी बलोच की वालदा का कहना था कि बच्ची को नाहक कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस मकतूल को इंसाफ दिलाने के बजाय कातिल का साथ दे रही है। जबकि रैली में शहरी, ताजर, रहनुमा, सियासी, समाजी रहनुमा, कारकुनान समेत खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनैद भट्टी, सच न्यूज़, टंडोजाम। मौसम बहार की आमद पर पारा चिनार में कोहे सफ़ेद के दामन में खूबसूरत सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों का सकाफती शो, इलाकाई रक्स, शायरी और साज से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं जावेद बंगश की। पारा चिनार में जिली इंतजामिया ने मौसमी बहार की आमद पर कोहे सफ़ेद के दामन में खूबसूरत तफरीही मकाम महके में स्पिन गरादबी जिरगी के साथ एक खूबसूरत सकाफती शो और मुशायरे का अहतमाम किया, जिसमें स्कूल की बच्चों ने सकाफती लिबास में शिरकत करके दाद हासिल की, जबकि मकामी व मेहमान शायरों ने अपनी बेहतरीन शायरी से महफिल को 4 चांद लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर कुरम वासिल हटक, ब्रिगेडियर साकिब गुलजार, DPO शफीउल्लाह, सिविल व फौजी अफसरान समेत जिला भर से कसीर तादाद में सिविल सोसाइटी मेंबरान ने भी शिरकत की। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से आई हूँ। मैंने आज हिस्सा लिया था, आज हमने बहुत एंजॉय की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुरम वासिल हटक ने कहा कि ऐसे मेलों के साथ वादी कुरम के सकाफत और कुदरती हुस्न को पायदार अमन व भाईचारे के रिश्तों के साथ मुनक्किद करते रहेंगे। जावेद बंगश, सच न्यूज़, पारा चिनार, जिले कुरम। मौसम बहार की आमद के साथ ही रंग बिरंगे फूल दिलकश नज़ारा पेश करने लगे। इन्हीं फूलों में गुलाब का फूल अपनी खुशबू की वजह से फूलों का बादशाह कहलाता है। रिपोर्ट करेंगे सराय सिद्धू से सैयद अली रजा नकवी। गुलाब का फूल मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इसका शौक रंग जज्बात के इजहार का मुयस्सर जरिया समझा जाता है। जब गुलाब शायरी में आता है, शुरा मोहब्बत की डोरियों में परोकर अपनी उल्फत का इजहार करते हैं। जब तबीब के हाथ आता है तो तबीब इसे कशीद करके इंसान के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ अद्वियात तैयार करते हैं। गुलाब अपनी मनपसंद खुशबू की वजह से फूलों का बादशाह कहलाता है, जिसकी काश्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ नामों से की जाती है। गुलाब के ये फूल कभी ये किसी के गले का हार बनते हैं तो कभी किसी के कलाई का कंगन, कभी गुलाब के फूलों को पत्तियों की शक्ल अख्तियार करना पड़ती है। दूर दूर तक हरे भरे दरख्तों पर लगे गुलाब के फूल हवा में यूं झूम रहे होते हैं, गोया परियां सुर्ख लबादे लहरा रही हूँ और रंग बातें कर रहे हूँ। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, साइड TV, सराय सिद्धू। मौसम बहार की आमद है। ननकाना साहब में फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का मकसद शहरियों में फूलों और पौधों की अहमियत को उजागर करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां आमिर लतीफ। जश्न बहारा के प्रोग्राम का मकसद शहरियों को सेहतमंद और रूह परवर तफरीह देना है। CO जिला कौंसल साजिद मुशर्रफ का कहना है कि फूलों की नुमाइश का मकसद शहरियों में फूलों और पौधों की अहमियत को उजागर करना है। शहरियों के लिए मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल भी लगाए गए हैं। बच्चे बड़े सब बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मैं इंजॉय कर रही हूँ। जी मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और यहाँ पे हमने बर्गर, फ्राइज, समोसे, आइसक्रीम बहुत कुछ खाया। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ के फूल भी है, सारी चीज़ें, झूले भी है, खाने के स्टॉल्स भी है। फूल और पौधे जमीन का हुस्न हैं जो माहौल को आलूदगी से बचाते हैं। कैमरामैन जैन मुगल के साथ मियां अमर, सच TV, ननकाना साहिब। और शरीफ में 700 साल कदीमी तारीखी मेला सज गया। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर। ओट शरीफ में 700 साल तारीखी 22वां मेला सजा दिया गया है। मेले की तकरीबात दूसरे रोज में दाखिल। ओट शरीफ का तारीखी मेला 4 बुजुर्गान दीन की याद में लगाया जाता है, जिसमें हजरत बाबा फरीदगंज शकर, हजरत बहावल ज़करिया मुल्तानी, हजरत लाल शहबाज कलंदर, हजरत शेरशाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुरखपूश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। जब ये 4 वलीउल्लाह ओट शरीफ में इकट्ठे होते थे, इस दौरान दूर दराज से आए अकीदतमंद दीन इस्लाम की तबलीग हासिल करते थे। ये मेला इनकी याद में मनाया जाता है। मुल्क भर से ज़ायरीन ने भी दरगाहों पर हाजिरी दी। इस दौरान शहरियों के लिए सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद होता है, जिसमें बच्चों के लिए झूले, चिड़ियाघर समेत सर्कस भी लगाई जाती है। इस तारीखी मेले में हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साच न्यूज़ और शरीफ। पाक पतन में हजरत सखी गुलाम कादिर के उर्स की तकरीबात शुरू हो गई हैं। अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे AD शाहिद।
कदीम तरीन तारीखी अहमियत के हामिल शहर पाकपतन में हजरत सखी गुलाम कादिर अल मारूफ चंद पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मेला आज तीसरे और आखिरी रोज में दाखिल हो चुका है। मेले में शिरकत करने के लिए दूर दराज के इलाकों से आने वाले अकीदतमंदों मुरीदैन ने हाथों में रंग बिरंगे झंडे उठाए जमातों की शक्ल में ढोल की थाप पर धमाल डालते हुए जौक दर जौक दरगाह पर हाजिरी की सादत हासिल कर रहे हैं। हजरत सखी चंद पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोजा मेले में पंजाबी सकाफत नुमाया नजर आती है। मेले पर कायम किए गए आरजी बाजारों में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सजाए गए हैं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और CCTV कैमरों से जायरीन की मुकम्मल तौर पर निगरानी की गई। मेले के आखिरी रोज सजादा नशीन सैयद हसन रजा गिलानी हजारों मुरीदैन के हमरा उर्स मुबारक की बड़ी रस्म अदा करेंगे। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। मौसम बहार की आमद, शांगा मांगा के जंगल में शहतूत के बागात तैयार हो गए। शहतूत कुछ जायका और शीरी फल है जिसे छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। रिपोर्ट करेंगे राना इलियास खान। छांगा मांगा जंगल 12,510 एकड़ रकबा पर मुहित है और इसकी एक खासियत ये भी है कि ये एशिया का हाथ से लगाया हुआ सबसे बड़ा जंगल है जिसमें लाखों की तादाद में शहतूत के पौधे लगाए हुए हैं। इस जंगल में शहतूत का फल पककर तैयार हो गया है जिससे लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों ने जंगल का रुख कर लिया है। छांगा मांगा जंगल आया, शहतूत खाने माशाल्लाह बहुत मजा आया। मैं ते मेरे दोस्तों ने बहुत इंजॉय किया। ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਾਦੇ ਨੇ वाकई जी मजा आ गया है। इस शहतूतों के बारे में काफी सुना था तो आज आके हमने इनको खाया और माशाल्लाह बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। शहतूत को मीठेपन और जायके की वजह से बड़े हों या बच्चे सभी पसंद करते हैं। शहतूत का इस्तेमाल जिगर की गर्मी को खत्म करने के साथ जिस्म से कई बीमारियों का खात्मा भी करता है। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज, छांगामांगा। नैब सखर के ज़रिए एहतमाम गर्ल्स फुल बॉडी कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। बच्चियों ने सेल्फ डिफेंस का मुजाहरा करके खूब दाद वसूल की। हाजी रियाज की रिपोर्ट देखते हैं। नेब सखर का स्प्रिंग गर्ल्स स्पोर्ट्स 2022 का इनेकाद खुश आइंद इकदाम है जो सदका जारिया है। गर्ल्स में खुद एतमादी पैदा करने के लिए फुल बॉडी कराटे लाजमी जुज़ है। खेलों में फुल बॉडी कराटे से जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतरीन होती है और नौजवानों की जहनी सलाहियतों में इजाफा होता है जिससे इनकी तालीमी काबिलियत बेहतरीन होती है। आज के बच्चे और नौजवान मोबाइल फ़ोन में गेम्स और दीगर सोशल वेबसाइट के इस्तेमाल से ज़हनी तौर पर पीछे होते जा रहे हैं जिससे इनकी तालीम मुतासिर होती है। ऐसे में कराटे का खेल इनकी ज़हनी और तालीमी सलाहियतों को चार चांद लगा देता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है नैब ने के फेरी होम में आज इनके कराटे की एक्सरसाइज वगैरह और मुकाबला करवाया जा रहा है। आजकल का जो दौर चल रहा है ख़वातीन और ख़ास करके बच्चियों को अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कुछ तरीक़ेकार और इनको कराटे और जूडो कराटे के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। खर स्पोर्ट फेस्टिवल फेरी होम में सेलिब्रेट किया जा रहा है नेब सखर की जानिब से। तो यहाँ ये एक्टिविटी जूडो कराटे बच्चे करते हैं। मैं उनकी सेल्फ डिफेंस के लिए ये मैंने शुरू किया था 6-7 महीने पहले। आज उनका मुकाबला है, पार्टिसिपेटिंग है। ये कराटे सिखाया जा रहा है और हमें इसलिए सिखाया जा रहा है कि हम अपनी हिफाजत खुद कर सके और हमें हौसला मिले कि अगर जी हमारे ऊपर कोई हमला करे और हम पर कुछ भी करे तो हम उसे फाइट करें और हम उसे दूर भगाएं। इसी पोजीशन हासिल की है। मैं दूसरी लड़कियों भी यही कहना चाहती हूँ आप लोग भी फर्स्ट पोजीशन हासिल, अगर जो आप लोग सीखेंगे आप लोग भी मेरे जैसे फर्स्ट पोजीशन हासिल करेंगे। आप लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ करेंगे। कराटे चैंपियनशिप में बच्चियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। जिस तरह नेब वतन अजीज पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ काम कर रही है इसी तरह खेल भी नौजवानों में बुराइयों का खात्मा कर रहे हैं। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सखर। लोअर दीन में शुगर से बचाव के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। टीचिंग अस्पताल ते मरगरे में शुगर से मुतालिक आगाही और अवामों में शऊर पैदा करने की गरज से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद हुआ जिसमें मुल्क भर की मुमताज डॉक्टरों ने शिरकत की। सेमिनार के शुरका ने कहा कि शुगर एक खतरनाक बीमारी है। शुगर की मरज तेजी के साथ बढ़ रहा है जबकि पाकिस्तान दुनिया भर में शुगर मरज के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। इसलिए इस मूजी मरज से बचने के लिए अवाम में शऊर उजागर करने की जरूरत है। 25% लोगों में शुगर जो रिपोर्ट की जा रही है। हर 100 में से जो है 25 लोगों को शुगर है और शुगर होने
होने का मतलब ये नहीं लोगों को पता भी चलता कि शुगर है कि नहीं है। उसकी जो कॉम्प्लिकेशन था उसमें आंखों का ख़राब होना, दिल का दौरा, फालिज हो गया, पाँव कटना हो गया और गुर्दे ख़राब हो गए, वो आते ही तब है जब पाँव सुन होना शुरू होता है। मुकर्रर ने कहा कि शुगर एक खतरनाक बीमारी है और इसकी कई वजूहात हो सकती है। टाइप 2 शुगर 40 साल की उम्र में हो जाती है। मोटापा, चीनी का ज्यादा इस्तेमाल, स्ट्रेस, टेंशन, सुस्ती, काहली इसकी वजूहात है। अगर शुगर का इलाज वक्त पर न किया जाए और 21 साल या ज्यादा तक शुगर कंट्रोल न रहा तो इसके बुरी असरात मुरतब होते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दिर। और इलाकाई खबरनामे से फिलहाल कितना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।